or 4 days, and then they will also add up. So then this 22% hospital admissions will further grow. And second, very important issue which we saw in the second wave was the patients would directly go to oxygenated beds, and many of them will directly go to ICUs the moment their test reports were declared, because they were losing their health fast in few hours' time. But the silver lining in the present scenario is that even though yesterday 500 plus people, I think 504 went to hospital yesterday, none went to ICU, and only 59 of these asked for oxygenated beds. And that too, this 59 people are those are people who are 80, 85 plus in age group, and they're highly comorbid, and they went more as abundant precaution to these oxygenated beds. So on one side, the symptomatic cases have been cut down from 22% to almost 10% now. And secondly, among the 10% figure also, half of the figures are very mild symptoms where people are not seeking hospital beds and they don't require hospitalization. Whereas in the second wave, our ICUs, our oxygenated beds were all filled up, because once somebody goes to an ICU, the turnaround time sometimes can be 20 days, 25 days, 30 days, the beds don't get vacated. And the stress in the second wave came primarily on oxygenated beds and ICU beds, not on overall hospital beds, because in the worst of time, on 14th of April 2021, when we had 93,000 active cases in Mumbai, and we had 11,100 cases coming in a single day, our ICUs got full, our oxygenated beds virtually were full, but we still had 3,000 non-oxygenated beds available with us. But this time, that category of oxygenated beds and ICU beds, I think we are in a better position. So considering that Omicron spreads so quickly, because look at the jump in number of cases. We've reached 8,000 cases from about 300 cases just in a matter of a few days, I think 14 odd days. Do you foresee, or would you think that we need restrictions? And this is the big question, sir. Are we going to come back to more restrictions than we have currently? I know right now public spaces are shut from 5 p.m. to 5 a.m. Are you mulling restrictions on things like restaurants, spas, salons, malls, etc., gatherings? Like I always say that there is no need to push the panic button, or there is no need to create panic among citizens. But having said that, at the same time, I repeatedly say that we cannot be complacent, we cannot lower our guard, and we cannot take it casually that this Omicron is not very serious, is very mild, because the numbers can be mind-boggling. In fact, the experts tell me that these numbers virtually double up in 3 or 4 days' time. We are preparing ourselves for maybe 15,000 cases coming in the coming week, in after 5-7 days, and cases may further jump every day. So unless you have a certain kind of strict COVID appropriate behavior, people wearing masks, not gatherings not allowed, and people using all of the precautions, these numbers can suddenly go out of control. And for that point of view, certain restrictions are required. For example, from today, we have decided to close the schools in Mumbai from class 1 to class 8 till 31st of Jan 2022. And class 9 to class 12, since we started vaccination drive today morning, and we have to vaccinate almost 4.5 lakh children between the age group of 15 and 18, class 9 to class 12, these schools will remain open, but for vaccination drives only. Otherwise, we are taking precaution that it should not spread like wildfire in the schools. Secondly, we are also started that in public places where huge gatherings happen, like beaches or say Marine Drive or Carter Road or say Gateway of India, these places we have put a curfew from 5 p.m. to 5 a.m. Through Section
Section 144 by Mumbai Police, where we said the gathering will not be permitted. So these bare minimum precautions we have taken, and I'm sure this will help us a lot. सर, अब हिंदी में मैं कुछ सवाल पूछूंगी हमारे ईटी नाउ स्वदेश दर्शकों के लिए भी, और ये सवाल एक बार फिर पूछूंगी क्योंकि इसका डायरेक्ट जवाब मुझे मिला नहीं। क्या आप सिनेमा घर, रेस्टोरेंट, मॉल, सैलून, स्पा, जिम जैसे जगहों पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लाने की सोच रहे हैं? क्या आपको लगता है ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि 15,000 केस हो सकते हैं मुंबई में अगले हफ्ते तक। देखिए, इसमें आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसके बारे में 30 दिसंबर को मीटिंग ली थी, और उस टाइम हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और वरिष्ठ मंत्रीगण मीटिंग में हाजिर थे। मैंने भी मीटिंग अटेंड करी थी। वहाँ पर ये लॉकडाउन वगैरह या रिस्ट्रिक्शन लाने के बारे में बहुत चर्चा हुई। तो मैंने उनको यही प्रेजेंट किया था कि अभी जो पॉजिटिविटी है, पहले सेकेंड वेव में क्या था कि अगर पॉजिटिविटी 5% के ऊपर चल जाती थी तो हम इमीडिएटली बहुत कुछ बंद कर देते थे। इस पर उनको मैंने बोला है कि आप 5% पॉजिटिविटी का जो यार्डस्टिक है, मापदंड है, उसको ना यूज करते हुए आपका मापदंड ये होना चाहिए कि हॉस्पिटल में आपकी स्टेटस क्या है, कितने बेड्स खाली हैं, हॉस्पिटल में कितने आईसीयू खाली है, कितना ऑक्सीजनेट बेड्स खाली है, कितने जनरल बेड्स खाली हैं। और दूसरा ये देखना चाहिए कि डेली जो पेशेंट्स आ रहे हैं उसमें से कितने लोगों को बेड्स लग रहे हैं। तो अगर हम ये फॉलो करेंगे तो हमें सही एक दिशा मिलेगी कि रिस्ट्रिक्शंस और कितनी लेके आनी या नहीं लेके आनी। तो उस दिन ये डिसाइड हुआ कि सिर्फ शाम को 5 बजे से सुबह 5 बजे तक ये लोगों की असेंबली बंद करने के अलावा और भी हमने कुछ भी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की। और आज क्योंकि 3 जनवरी से सब स्कूल खुलने वाले थे और बच्चे सारे अनवैक्सीनेटेड हैं जो स्कूल में जा रहे हैं, तो हमने एक और प्रिकॉशन लिया कि एक क्लास पहली से क्लास 9वीं 8वीं तक स्कूल से 31 जनवरी तक बंद कर दिए जाएं और सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई हो। और क्योंकि हमें 4.5 लाख बच्चों का वैक्सीनेशन करना है ऑन वॉर फुटिंग एज डायरेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये बच्चे अगर स्कूल नहीं आएंगे तो इनको घर घर हजारों जगह जाना, वैक्सीनेशन करना बहुत मुश्किल है। तो इनको स्कूल लाएंगे, वहाँ बसेस में से इनको भर के हम कोविड सेंटर्स लेके जाएंगे जो हमारे साथ जम्बोज हैं, वहाँ इनका वैक्सीनेशन करेंगे। अभी आज हमने जो सुबह इसका शुभारंभ किया है केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार, हम हमारे जो बीएमसी के स्कूल्स हैं उसमें करीब 37,000 बच्चे हैं जो अगले 4 दिनों में हम पूरे इनको वैक्सीनेट कर देंगे। उनको वैक्सीनेशन करने के लिए हमने क्लास 9 टू क्लास 2 खुली रखी है, परंतु सिर्फ वैक्सीनेशन को करवाने के लिए। इसके अलावा हमने ये डिसाइड किया है कि 10 जनवरी के आसपास फिर स्टेट गवर्नमेंट लेवल पर चर्चा होएगी कि अभी स्टेटस क्या है और आगे और कोई रिस्ट्रिक्शन की जरूरत है या नहीं है, तब डिसाइड होएगा। पर ये हमारे ऑनरेबल सीएम सर बार बार बोलते हैं कि लॉकडाउन करना या नहीं करना और रिस्ट्रिक्शन लेके आनी, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल बंद करना या नहीं करना, ये लोगों के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। अगर आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अडॉप्ट करेंगे और केसेस एक हद से ज्यादा नहीं बढ़ेंगे तो आगे कुछ और रिस्ट्रिक्शन आएंगे ही नहीं। वैक्सीनेशन की आपने बात कही और आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि पहली बार 15 साल के ऊपर जो बच्चे हैं उनका टीकाकरण आज शुरू हुआ है। इसमें आप थोड़ा हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए कि जो 4.5 लाख आपने कहा बच्चे हैं मुंबई में जिनको वैक्सीनेट करना है, वो किस रफ्तार पे आप कर पाएंगे? कब तक आपको लगता है कि इन बच्चों को वैक्सीन मिल पाएगा? ऐसे है कि ये हम केंद्र सरकार के आभारी हैं। We are grateful to Government of India that they have started this campaign of vaccination of children from 3rd of January today, and Government of Maharashtra and BMC is fully geared up to ensure that we do this drive on a war footing and top priority. जिसमें कि जहाँ तक बम्बई का सवाल है, वो हमारे बम्बई में टोटल 20,80,000 बच्चे हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं क्लास 1 से क्लास 12 तक। ये 20,80,000 में से 4,54,000 बच्चे हैं जो 15 और 18 साल के बीच में इनकी आयु है। और
ये जो 4,54,000, इसमें 37,000 बच्चे हमारे बीएमसी के स्कूलों में हैं और 4,17,000 बच्चे हमारे प्राइवेट स्कूल्स में, नॉन एडेड स्कूल्स में पढ़ते हैं। तो हमारा पहला टारगेट है कि जो हमारे 37,000 बच्चे हैं उनको अभी आज मंडे से थर्सडे 4 दिन में हम सबको वैक्सीनेशन दे देंगे। इसके अलावा आज हमारे पास जो वैक्सीनेशन की जो सप्लाई है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी, बीएमसी में कुल मिला के हमारे पास आज 21 लाख वैक्सीन उपलब्ध हैं। तो वैक्सीनेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। केंद्र सरकार ने हमें बड़ी भारी मात्रा में हमें वैक्सीन सप्लाई किए हैं। उसमें अभी हम प्लान ऑफ एक्शन बनाया है हमने स्कूल वाइज प्राइवेट स्कूल्स का, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शंस है कि स्कूल लेवल पर हम वैक्सीनेशन नहीं करेंगे कि ताकि कोई एडवर्स रिएक्शन हो जाए तो किसी बच्चे को कोई खतरा नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। परंतु बंबई में एक हमारा एडवांटेज है कि हमारे पास 7 बड़े जंबो पहले थे और 3 और ऐड कर दिए। 10 हमारे जंबो हॉस्पिटल्स हैं जहां पर हजारों बेड्स हैं, जहां पर सैकड़ों आईसीयूज हैं। हम बसेस में, स्कूल बसेस में, चाहे स्कूल की बस हो प्राइवेट स्कूल की, चाहे हमारे बीएमसी की बसेस हैं, बीएसटी की, हम बच्चों को स्कूल से ये जंबो सेंटर्स में लेके आएंगे, जो नियरेस्ट जंबो सेंटर है उनके स्कूल के, वहां इनको वैक्सीनेशन करेंगे और स्कूल वाइज। और हमारा प्लान है कि बाय एंड ऑफ दिस मंथ हम मेजॉरिटी वैक्सीनेशन खत्म कर देंगे। So, I want to ask you about those who are unvaccinated. Now, previously, we've had rules that unvaccinated people have been restricted from using Mumbai local trains. Are we going to consider increasing restrictions for unvaccinated people in public areas like the state of Haryana has done, for example? Tamanna, that issue will not arise in Mumbai because we are adding almost 1% every day. I just mentioned that we have done 108% first dose and 88% second dose. Maybe in another 12 to 15 days, Mumbai will stand fully vaccinated. Everybody will be vaccinated, so there's no question of unvaccinated in Mumbai at least. तो इकबाल सिंह चहल के साथ बातचीत हो रही थी, तमन्ना उनसे पूछ भी रही थी कि मुंबई में इस समय यथास्थिति क्या है। उन्होंने 2 बातें बड़ी अहम की हैं। एक तो पहला बात है कि केसेस तो बढ़ेंगे, आप 15,000 केसेस मुंबई के लिए भी तैयार हो सकते हैं। दूसरी जो अहम बात है कि केसेस बढ़ेंगे तो सही, लेकिन चिंता करने की कोई खास बात नहीं है क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बढ़ रहा। आपको दिक्कत तभी होगी जब हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ेगा, तो उसको लेकर वो कह रहे थे कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ये कह रहे हैं कि सरकार और बीएमसी पूरी तरह से तैयार है। बच्चों की वैक्सीनेशन की ड्राइव आज से शुरू हो रही है, स्कूल बुलाया जा रहा है, वहाँ से उनको जंबो सेंटर्स में लेके जाया जाएगा जहाँ पे उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा। तो अभी तक तो सब कुछ ठीक ही दिख रहा है। ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि बीएमसी के हाथ से बाजी निकल गई या फिर बीएमसी के ऊपर काफ़ी अनड्यू प्रेशर है जो हम सेकेंड वेव या फर्स्ट वेव में देखा करते थे। अभी तक तो इकबाल चहल ये बात बताते हुए, देखते हैं केसेस बढ़ते हैं तो शायद हो सकता है कि मुश्किल बढ़े ना, लेकिन अभी तक सशक्तिकरण की बात साफ साफ बिल्कुल निकल के आ रही है, यानी कि पक्के हैं, सशक्त हैं। आगे बढ़ते हैं, कुणाल बोथरा हमारे साथ हैं। कुणाल जी, एक काम आप